کیونکہ میں ٹریننگ پہلے سے لیا ہوا ہوں، سونے والوں کو سلانے والا بیان کر دیتا ہوں، عاشقوں کو عشق کا بیان کر دیتا ہوں، سوئی ہوئی قوم کو جگانے والا بیان کر دیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اور آپ پھر ایک مرتبہ آمنے سامنے ہوئے ہیں، تو میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ ہمارے امام جامعہ حضرت علامہ مولانا الطاف ثقافی صاحب کی ایک آواز میں غوثیہ میں جمع ہوتے ہیں، تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میں کمیٹی کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے زائرین کا بہت اچھی طرح خیال رکھتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تشعرون۔ کہا جاتا ہے بارات کا مطلب ہے نجات کی رات۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خصوصی رحمت سے نوازتے ہیں۔ پورے سال میں جس کو بھی جو دینا ہے وہ آج ہی کی رات فیصلہ ہوتا ہے۔ آج کی رات اللہ تعالیٰ کے سامنے فرشتے جمع کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے آج کی رات، اسے شب برات کہا جاتا ہے۔ تو اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے بندوں سے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو میں عطا کروں، ہے کوئی دعائیں کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ تو یہ ایسی رات ہے، تو اس میں آپ دل کھول کر کے دعائیں مانگیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ جس دل میں داغ روشن ہو تو اس پر آتش دوزخ حرام ہو جائے۔
यकीन की लाज रख लेना। तुम्हारा हूँ, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। असर हो आने दिल मयसर हो रसूल अल्लाह। जैसली माशाअल्लाह रसूल मिल जाए, जैसली कायनाते रसूल मिल जाए। नात ख़ानी तो बहाना है मेरी बख्शिश का, अरे नात सुनते हुए पुल से मैं गुजर जाऊंगा। क्या है सल्लल्लाहु अलैहि माशाअल्लाह मदनी कौनैन में तुमसा कोई नहीं, कोई नहीं। मक्की मदनी हद में रसूल, मक्की मदनी कौनैन में तुमसा कोई नहीं, कोई नहीं। नूरे मुजासम तेरे सिवा, नूरे मुजासम तेरे सिवा, महबूब खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं। खत में रसूल मक्की मदनी और साफ तो सब। कदीर बंदू से कहता है मांग लो, रब्बे कदीर कहता है बंदू से मांग लो। हमने है इसीलिए बनाई शबे बरात, करते रहे तिलावत इबादत तमाम रात, करते रहे तिलावत तमाम रात। खुद मुस्तफ़ा ने ऐसी मनाई शबे बरात। सुन्नत रसूल की है ज़ियारत कबूर की, सुन्नत रसूल की है ज़ियारत कबूर की। कीजिए कुछ उनके हक में बधाई शबे बरात। हम और आप का यहाँ जमा होने का मकसद हो सकता है कि बहुत सारे हज़रात जानते हैं, लेकिन मेरी नजरें जब इस महफिल में जाती हैं तो कहीं न कहीं मुझे ये एहसास होता है कि अवाम उन्नास की इल्मी दस्तरस को मद्देनजर रखते हुए क्यों न मैं शब-ए बरात का मतलब ही यहाँ बयान करना जरूरी, इसका हमें एहसास भी है और हम आपके मशहूर भी हैं कि उलमा का इस तरह से जमगठा लगना और उलमा का आपसे इस तरह रूबरू होने की एक चाहत अपने दिल में पा लेना, ये अपने आप में न सिर्फ उलमा की बेदारी का सबूत है, बल्कि इस मजमूए की तादाद बताती है कि अवाम नास के दिल में कुछ लेने की चाहत है। चुनांचे पुराने पाक में इरशाद होता है कि मैंने इसको इस मुबारक रात में उतारा। इस आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैंने कुरान को जो है इस मुबारक रात में, यानी शब-ए बरात, शब ये फारसी का लफ्ज़ है, मैं मतलब बोलना थोड़ा भूल गया था। शब ये फारसी का लफ्ज़ है और बरात अरबी का लफ्ज़ है। शब कहते हैं रात को फारसी में, बरात कहते हैं अरबी में आज़ादी। तो आया वो किस आज़ादी की रात मनाई जा रही है? दोस्तों 15 अगस्त 1947
کا وہ دن ایک ملک کی آزادی، ہمارے دیش کی آزادی کا دن تھا، اس کو آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ ہم لوگ کتنے جوش و خروش سے کے ساتھ مناتے ہیں۔ تو آیا اللہ تعالیٰ کی اس مبارک دن میں کس آزادی کی بات کی ہے؟ تو یہ میں آپ کو بتا دوں، آج اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب سے، مصیبتوں سے آزادی کا دن ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ہم نے اتارا اسی مبارک رات میں۔ تو آیا اگر اس سے ہم قرآن معنی اور مطلب لے لیں تو پھر اس آیت کا کیا مطلب لیں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ غالباً آپ تمام حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں، اچھی طرح اس کو جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے رمضان المبارک میں منائی جاتی ہے اور 27ویں شب کی یعنی 7 راتوں میں سے کہا جاتا ہے۔ تو مفسرین نے کہا مطلب کو سمجھنے کے لیے اور ایسا بھی نہ ہو کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو لوح محفوظ سے قرآن کو اتارا آسمانی دنیا پر، وہ اس رات کو کی لیلۃ القدر کو پورا ہوا۔ اب تھوڑا آتے ہیں اس رات کی مصروفیات کے لیے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ان کے کمرے سے غائب تھے۔ حضرت عائشہ پریشان ہو گئی کہ حضرت کہاں چلے گئے، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے جنت البقیع کی طرف جب گئی تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں جا کر کے فاتحہ پڑھا۔ تو حضرت عائشہ کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم سوچتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے ساتھ زیادتی کی؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اے پیغمبر، میں نے سوچا کہ آپ آج کسی اور زوجہ مبارکہ کے پاس چلے گئے۔ تو یہاں پہ شب برات کی رات کی مصروفیات سے زیادہ مجھے دوستو یہ بتاؤ کہ پیغمبر نے عائشہ کو جو الفاظ بولے اس میں بولا کہ اے عائشہ، کیا تم ایسا سوچتی تھی؟ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی کو علم غیب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، آج کی رات ہمارے نصف شعبان ہوا۔ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر خود جلوہ افروز ہو کر کے اپنی شان کے مطابق آوازیں دیتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے ماننے والا، ہے کوئی جو مجھ سے اپنی آشناؤں کی بخشش فرمائے، ہے کوئی ایسا شخص مجھ سے آج اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے۔ حدیث میں آتا ہے۔ یہاں پر میں ایک پوائنٹ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسجد میں آ کر بہت سارے لوگ جو ہے روتے ہیں، یا اللہ مجھے بخش دے، میری گناہوں کی مغفرت فرما۔ لیکن یاد رکھیے گا توبہ استغفار اور توبے میں فرق ہے۔ استغفار الگ چیز ہے، توبہ الگ چیز ہے۔ تو میں احادیث کے مطابق لسٹ میں سے کچھ لوگوں کے نام بولنا چاہوں گا کہ وہ کیسے لوگ۔ سب سے پہلے اس میں آتا ہے مشرک جس نے خدا کے ساتھ شرک کیا۔ مشرک کی آج بخشش نہیں ہوگی۔ اب آیا مشرک کون ہے؟ وہ سارے لوگ تو ہم کو بھی مشرک کہہ دیتے ہیں۔ اب اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا، اور مجھے امید ہے کہ دوسرے والے لسٹ میں جو 6, 7, 8, 9, 10, 11 لوگ آئے ہیں وہ تو اس مجلس میں ہو سکتے ہیں لیکن مشرک نہیں ہوں گے۔
چلے آپ ہم سب بچ گئے. کیونکہ احادیث میں آتا ہے، مجھے ابھی یاد آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت پر مجھے یہ خدشہ نہیں ہے کہ وہ کفر پر جمع ہوگی، شرک پر جمع ہوگی، بلکہ مجھے خوف اس بات کا ہے کہ وہ دنیا میں مبتلا ہو جائے گی اور دنیا میں مبتلا ہو کر کے اپنے آپ کو مٹا دے گی. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں میں مشرک بہت کم ہوں گے. اب اس میں دوسرا نمبر آتا ہے، اس کو بغور سننا میرے نوجوان دوستوں، کیونکہ یہ کوئی بیان نہیں ہے، یہ میں دل کے لفظوں سے کہہ رہا ہوں. بات میں نہ کہنا کہ اثر نہیں ہوا، مولانا شاید دل سے نہیں کہہ رہا تھا، میں تو دل سے کہہ رہا ہوں. اب آپ کے اوپر آپ دل پر لیتے ہو، دل چیر کر میں دکھا نہیں سکتا. تو دوسرا اس میں آتا ہے احادیث کے مطابق قطع رحمی کرنے والا. اب یہ اس لسٹ میں ہوں گے اور اس میں فلمیں بھی ہوں گے، تو میں ان سے دستہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنی معافی کا آج ہی لیں گے، نہیں تو فجر سے بعد آپ کی بخشش نہیں ہوگی، سوائے اس چیز کے کہ اگر آپ اس کو توبہ کرتے ہیں اور پھر سے. اب قطع رحمی کرنے والا کون ہے؟ قطع رحمی میں وہ لوگ آتے ہیں جو بڑے اچھے سے سماج میں چل رہے ہوں گے، ان کے دوست و یار بہت ہوں گے، ان کے بڑے اچھے بینک بیلنس ہوں گے، لیکن ان کا بھائی ان سے ناراض ہوگا، رشتہ داری کاٹنے والا. باخدا بتاؤ دوستوں، ہم میں سے بہت سارے یہاں ایسے موجود ہیں، ہم ایسے لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں جو مسجدوں میں آ کر پہلی صف میں نماز تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا گھر میں اس کا بھائی اس سے ناراض ہے. ارے تم لوگ کیا جانتے ہو، یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، یہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے. اور پھر اس لسٹ میں ایک آتے ہیں ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر دیکھا نہیں ہے. ایسا منظر مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. میرے آقا اس نے یوسف صدقہ آقا تیرے خزانے کا. ماشاءاللہ تیرے آنے سے اس کے بعد آیت آتی ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بے شک ہم نے اس کو اتارا یعنی قرآن پاک کو ایک مبارک رات میں. اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، اور ہم جو ہے تنبیہ کرنے والے ہیں، یعنی انسانیت کو ہم جو ہے اس کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے جو ہے تنبیہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو تیسری آیت ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس میں یعنی اس رات میں ہر حکمت والا جو امر ہوتا ہے، جو کام ہوتا ہے، جو معاملہ ہوتا ہے،
उसको युफरक किया जाता है, मतलब उसको अलग अलग किया जाता है या बांट दिया जाता है। हज़रात मोहतरम मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया कि इस रात से मुराद शब बारात है। क्यों? क्योंकि रिवायत अहादीस में, यानी अहादीस में 15 शाबान मुअज़्ज़म के ताल्लुक से जो हदीसें वारिद हुई हैं, जिसमें 15 शाबान मुअज़्ज़म को एक बाबरकत रात कहा गया है, जिसके बारे में आपने पहले भी मुकर्रिन से सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात जन्नतुल बकी जाया करते थे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से वो हदीस मरवी है। इसके अलावा भी बहुत सारी अहादीस करीमा जो है इतने तवातुर के साथ, अगरचे उनमें ज़ईफ़ अहादीस भी हैं, इतने तवातुर के साथ अहादीस मरवी हैं कि इससे मुफस्सिरीन किराम ने ये नतीजा निकाला कि सूरह दुखान की ये जो शुरुआती आयतें हैं, इस रात से मुराद शब बारात यानी 15 शाबान मुअज़्ज़म की रात है। हम अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ इस रात में इबादतें और तौबा इस्तग़फ़ार के अलावा और ज़्यादा कुछ नहीं है, वो ज़्यादा कुछ नहीं है जो हम आज अपने माहौल में देखते हैं कि लाइटें सजाई जा रही हैं, मोमबत्तियां जलाई जा रही हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो हमारे जो अहले तशरीफ आई हैं, उनकी रिवायतों में 15 शाबान मुअज़्ज़म को उनके 12वें इमाम इसना अशरिया कहते हैं 12 को, अशरतुन 10, 11 और इसना अशरिया 12। उनके 11वें इमाम थे इमाम हसन अस्करी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो 260 हिजरी में, जिनको मोतमद बिल्लाह एक अब्बासी खलीफा था, और उनसे पहले भी जो खलीफे थे मोतज़ बिल्लाह वगैरह, तो उनके दौर में जो है इमाम हसन अस्करी की शहादत हुई थी। तो उनके यहाँ एक फर्जंद हुआ था जिनका नाम था इमाम मेहदी, यानी इसना अशरिया के 12वें इमाम। अभी वो 4 या 5 साल के नहीं थे कि उनको, जब इमाम हसन अस्करी जो उनके 11वें इमाम थे, जब उनको हुकूमत वक्त ने जहर देकर उनको शहीद किया, तो इमाम मेहदी को जो है उस वक्त अल्लाह ताला ने पर्दे गैब में डाल दिया या उठा लिया। ये हमारे अहले तशरीह की जो रिवायतें हैं, ये उनका मानना है। इसलिए उनका ये मानना है कि क़यामत से पहले हजरत इमाम मेहदी कभी भी तशरीफ ला सकते हैं। तो वो इस रात को जिक्र और अस्कार के अलावा एक खुशी के दिन के तौर पर भी मनाते हैं, और इराक और ईरान में बाज़ाब्ता सरकारी छुट्टी होती है, यौम मुस्तज़अफ़ीन मनाया जाता है इस दिन में। तो इसलिए वो जो है इस रात को खुशी के तौर पर भी मनाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से 15 शाबान मुअज़्ज़म सन 255 हिजरी, यानी हिजरत से 255 साल के बाद इमाम मेहदी की पैदाइश हुई थी, जो उनके 12वें इमाम हैं और जो पर्दे गैब में। तो हमारे यहाँ इस शब में इबादत और उमूर के तक़सीम तक का ही जो है ख्याल है, और हमारा इतना तक ही मानना है। खाकर उसमें से ये बाद वाले जो है ये इस्तिस्ना है, यानी जमाने की कसम, यानी निचोड़ ये है कि इंसान खसारे में है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, बहुत बड़े खसारे में। इल्लल लज़ीना, मगर वो लोग नहीं है। इल्ला आता है किसी चीज को खारिज करने के लिए, जैसे हम कहते हैं ला इलाहा, कोई इलाह नहीं है, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह हो। तो इसी तरह इंसान खसारे में है, मगर वो लोग नहीं है जो आमन, जिन्होंने ईमान लाया। यतीमी मीठ
خیال کرتے ہیں جن کا آقا خیال کرتے ہیں جن کا آقا خیال کرتے ہیں جن کا آقا خیال کرتے ہیں وہ کب کسی سے سوال کرتے ہیں وہ کب کسی سے سوال کرتے ہیں کس کرم کی مثال دوں تم کو کس کرم کی مثال دوں تم کو وہ ہر کرم بے مثال کر وہ ہر کرم بے مثال کر اپنے آقا سے عشق ایسا کر دیوانوں حضور سے عشق کیسا کیا جاتا ہے اس کی مثال دے رہا ہوں اپنے آقا سے عشق ایسا کرو اپنے آقا سے عشق ایسا ارے اپنے آقا سے عشق ایسا
जैसा हजरत बिलाल करते हैं, जैसा हजरत बिलाल करते हैं। ये रात अपनी ही खताओं से माफी मांगने की रात है। हर इंसान खताकार होता है। मुझे ही ले लीजिए, रुए जमीन पर सबसे बड़ा खताकार मैं हूँ, और हर लम्हा हमारा अल्लाह की नाफरमानी में गुजर जाता है। लेकिन अल्लाह का करम है कि हर लम्हा हम पे रहमत की बरसात करता है। यूं तो हर सांस हमारी उसके खिलाफ चलती है। हाँ, उसकी दी हुई निगाह से हमने क्या क्या नहीं देखा है। यहाँ बैठा हर आदमी जानता है कि उसकी आंख क्या करती है और क्या नहीं करती है। हर जवान जानता है कि रात के अंधेरे में वो निगाहों से क्या देखता है। हर बुजुर्ग जानता है कि उसने जवानी में क्या किया है। हर बच्चा जानता है कि निगाहें कहाँ कहाँ चली गई है। मगर ये मेरे करीम रब का करम है कि निगाहों में रोशनी बाकी रखा है। ये उसका करम है कि हमारी निगाहों में रोशनी बाकी है। हजरात, वो कादिर है निगाहों से रोशनी छीनने पर भी। वो कादिर है गुनाहों की तरफ उठने वाले कदमों को रोकने पर भी। वो कादिर है जो हाथ जुल्म पर उठते हैं उन हाथों से कुव्वत को खींचने पर भी। लेकिन ये उसका करम है कि हर बार हम पर मोहम्मद के सदके करम करता है। ये उसका करम है, ये उसकी इनायत है, ये उसकी मेहरबानी है कि हम जैसे निकम्मों पर आज भी रहमत की बरसात हो रही है। साहेब, अगर हम में से हर आदमी 5 मिनट सिर्फ अपनी जिंदगी को पीछे लेकर देख ले तो हम तो अपना चेहरा दिखाने के भी काबिल नहीं है। हम तो आईने के सामने लाकर खुद पे थूकने के काबिल है। मगर ये करीम का, मगर ये उस सत्तार का जो हमारे अयबों पर पर्दा करता है, ये उसका करम है कि गुनाहों पर पर्दा करके हमें अच्छों में बना रखा है। तो क्यों न मैं दिल से शुक्र अदा करूं उसका जिसने इज्जतों के ताज हमारे सरों पे रखा है। क्यों न मैं उसके आगे झुकूं जिसने लाख नाफरमानियों के बावजूद भी मेरी सांसों को बाकी रखा है। अरे मैं क्यों न उसके आगे मर मिटूं इसलिए कि आज भी मुझे मोहम्मद के दामन से जुड़ा रखा है। ये सारा कर्म किसका है? मिलकर सारा कर्म किसका है? हाँ, हर आदमी। मेरे हुजूर ने फरमाया एक लम्हा फिक्र करना, एक लम्हा अपने गुनाहों को याद करना 70 साल की इबादत से अफजल है। 70 साल की मेरे नबी का दौर है। आओ तुम्हें सुनाऊं एक किस्सा। मैं तकरीर ज्यादा देर नहीं करूंगा क्योंकि काफी थका हुआ हूं। मेरे नबी का दौर है और सहाबा ऐसे ही जुर्म में हुजूर के सामने बैठे हैं। कौन बैठे हैं? मिल के बोले, मिल के बोले। हमें हर सहाबी से प्यार है ना, तो मिल के बोले कौन बैठे हैं? सहाबा। और हुजूर जलवागर है। हुजूर आए, क्या महफिल वो सजी होगी। वो निगाहों पे भी कुर्बान जाए ना जिन निगाहों ने मोहम्मद को देखा होगा। हाय हाय, जिन निगाहों ने मोहम्मद को, हाय हाय। अबू बकर से पूछ लो हुजूर की आंखें कैसी थी। अबू बकर कहते अल्लाह की इज्जत की कसम जान कुर्बान करने को दिल करता था। यार हम किस नबी के उम्मती है। अबू बकर ने शाम का डसना गवारा किया मगर हुजूर को तकलीफ देना गवारा न किया। हम किस नबी के उम्मती है। नाज करो, यूसुफ भी कहते हैं
मेरा हुस्न बाजार मुस्तफाई के सामने कुछ भी नहीं है। मैं किस नबी का उम्मती हूँ। मूसा भी कहते अल्लाह काश मुझे तूने मोहम्मद की उम्मत में पैदा किया होता। मैं फख्र न बनाऊं उस उम्मती होने पर, उस नबी के उम्मती होने पर जिसके तराने 1,24,000 कमो पेश अंबिया ने गाए और जिसकी तारीफ खुद रब्बे कदीर कर गया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया सहाबा का हुजूम था और आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवगर थे। 7 साला एक नौजवान का किस्सा है, अरब की जमीन गवाह है। सूरज आज भी चमक करके रहा है। हमने दीवाने तो देखे हैं मगर उस जैसा दीवाना आज तक नहीं देखा है। चांद वही है जो तब से निकल रहा है। वो कह रहा है अरब की सरजमीन पर 7 साला कोई दीवाना आज तक हमने उसके अलावा किसी को देखा नहीं है। 7 साला बच्चा है, 7 साला बच्चा है। हजरत उम्र क्या होगी देख, दाढ़ी आ गई हमारे चेहरों पर। यार हम तो बड़ी बड़ी बातें करने वाले भी बन गए मगर 7 साल के बच्चे के सामने हम कुछ भी ना निकल पाए। फिर क्या फायदा हमारी जवानी का, क्या फायदा हमारे इस दौलत का, शोहरत का, अगर हमने खुद को बाजार मुस्तफाई में सौदा न कर पाए। 7 साल का बच्चा है, यहूदी के घर में पला है, बाप यहूदी है, माँ यहूदी है, पूरा घराना यहूदी है। बच्चे की नजर एक मर्तबा हुजूर के चेहरे में पड़ गई। हाय हाय, अल्लाह करे हमें वो चेहरा देखने को मिल जाए। 7 साला बच्चे की नजर कहाँ पड़ गई? बोलो ना, कहाँ पड़ गई? वद्दुहा वाले चेहरे पर उसकी नजर पड़ गई। वल्लैलि इज़ा सजा वाली जुल्फों पर उसकी नजर पड़ गई। अलम नशरह वाले सीने पर। आए बच्चे ने देखते ही रह गया, हुजूर सामने से गुजर गए। इधर बच्चा मोहम्मद का दीवाना हो गया। सुभान अल्लाह। इधर बच्चा मोहम्मद का दीवाना हो गया। अब घर चला गया बच्चा। जैसे ही रात को खाने की बारी आई, माँ ने खाना पेश किया मगर दीवाना हुस्न मुस्तफा में खो गया। मगर दीवाना हुस्न मुस्तफा में खो गया। खाना नहीं खा रहा। माँ ने कहा बेटा खाना खा। माँ से कहता है खाने का मन नहीं है। माँ को बोल नहीं पाया कि तुम क्या जानती हो मैं क्या खा के आ गया हूँ। आए दीवानो, इश्क मुस्तफा किस चीज का नाम है सुनो। 7 साल का बच्चा अरब की सरजमीन से हमें समझा रहा है। माँ ने खाना पेश किया, बच्चा अर्ज करता है खाने को मन नहीं है। महफिल से उठ गया, कमरे में चला गया, एक दीवार से दूसरी दीवार चक्कर मार रहा है। एक चक्कर नहीं, 2 चक्कर नहीं, बल्कि उसने 200 मरतबा चक्कर मारे हैं। 7 साल का बच्चा। बाप ने दरवाजा खोल के देखा, बच्चा इधर उधर चक्कर मार रहा था। बाप ने पूछा बेटा आंख में आंसू है, चेहरे में गमी है और तुम चक्कर मार रहे हो, कहीं कोई तकलीफ है, कहीं दर्द है? बच्चा कहता है ना अब्बा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ, बस नींद नहीं आ रही है। बस नींद। जिसको इश्क़ नबी का जाम मिल जाता है फिर उसकी नींदें भी उड़ जाती है, उसकी नींदें भी उड़ जाती है। बाप चला गया, एक दिन हो गया, अगले दिन सुबह सुबह बेटा घर से गायब हो गया। बाप ने पूछा बेटा कहाँ? माँ ने कहा कहीं निकल गया होगा खेलने के लिए। मगर पता न था माँ बाप को वो खेलने नहीं मुस्तफा की गली चले गया था। खेलने नहीं गया था, मुस्तफा की गली चले गया था। पूरी रात नींद नहीं किया है, बेदारी के आलम में याद मुस्तफा में अपने लम्हों को गुजारा है। सुबह होते ही मुस्तफा की चौखट में हाजिर हो गया है। अल्लाह अकबर। हुजूर को देखता था मगर जूतों की जगह में बैठ के। कहाँ बैठ के? उधर आगे जूते जहाँ सहाबा निकाला करते थे, क्यों अभी कलिमा पढ़ा न था ना, जूतों की जगह में बैठ के छुप छुप के हुजूर को देखा करते थे। छुप छुप के हुजूर को। और अल्लाह की कसम हुजूर भी जानते थे बीच में एक नजर उधर भी मार लेते थे। अल्लाह करे वो नजर हम में भी हो जाए, अल्लाह करे इस महफिल में हो जाए, इन जवानों के सीनों में हो जाए, इन बुजुर्गों में हो
जाए, इस इलाके में हो जाए। मुस्तफा की नजर जिसे मिल गया वो जन्नती हो गया। हुजूर छुप के देखा करते थे। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, बच्चे ने कुछ खाया नहीं ना, अब जिस्म में कमजोरी आ गई, बच्चा चलने से भी आजिज हो गया। माँ ने बेड पे लेटाया, बाप सिरहाने खड़ा है। माँ तो माँ होती है ना। अल्लामा शबीर अलैहि रहमा, अल्लामा शबीर साहब ने भी बयान फरमाया था कि सहाबी को भी कलिमा तब निकला जब माँ ने माफी दे दी। माँ बेटे के सामने बैठे हैं, माँ मोहब्बत की निगाह से अपने लगते जिगर को देख रही है। माँ की आंख में आंसू है। एक ही बेटा था, उसने भी खाना छोड़ दिया, अब बेड पे लेटा है, माँ के आंख में आंसू है। माँ कहती है अपने ही आप में, ए अल्लाह तूने तो दिया, उस टाइम जिसे वो भगवान मानती थी पत्थरों को, तूने तो दिया, आज मुझसे मेरी जिंदगी छीन रहा है। मेरी जान ले ले मगर मेरे बच्चे की जान छोड़ दे। माँ के आंख में आंसू है, मोहब्बत भरी निगाह से 7 साल बच्चे का चेहरा देख रही है। बाप सिरहाने बैठकर दिल ही दिल में ख्याल कर रहा है, मैंने सोचा था बेटा बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा, मैंने सोचा था बेटा मेरा नाम रोशन करेगा, मगर ये तो बेड पे लेट गया है। बाप रो रहा है और माँ रो रही है। हमसाये जमा हो गए, अल्लाह अकबर, पड़ोसी जमा हो गए, रिश्तेदार खबर लेने आ गए, क्योंकि अमीर घराने से ताल्लुक रखता था। अल्लाह अकबर, बेटा बेड पे लेटा है। अब पड़ोसी आके पूछते बेटा क्या हुआ, जवाब एक ही मिलता है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। यह इश्क मुस्तफा है जो हर जुल्म सहने के बाद भी कहता है हमें कुछ नहीं हुआ है, हमें कुछ नहीं हुआ है। आखिर कर बाप ने दोनों हाथ बेटे के आगे बांध दिया, कहा बेटा बाप सारी दौलत लगा देगा, बाप अपना घर बेच डालेगा, बाप अपनी किडनियां भी निकाल के बेच डालेगा, मगर बताना तकलीफ कहाँ है, बताना तकलीफ कहाँ है। माँ ने अपने सर से अपनी इज्जत को उतार कर बेटे के कदमों में रख दिया, कहा बेटा अगर तू न रहा तो तेरी माँ जिएगी किस लिए, बताना तुझे क्या मामला है। बेटे ने एक ही जवाब दिया, अम्मी बताऊंगा तो क्या मेरी हाजत को पूरा कर दोगी। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा बेटा जिंदगी लगा दूंगी। बाप ने कहा बेटा बोल, तेरा बाप सारी दौलत लगा देगा। बेटे ने पुकार के कहा अम्मी मुझे मुस्तफा की चौखट में लेके चलो, मुझे मुस्तफा की चौखट में लेके चलो, मुझे मुस्तफा के दरबार में लेके चलो। बाप मुस्तफा का सबसे बड़ा दुश्मन था। बाप कहता था मेरे घर में हर एक का तज़किरा हो जाए, मगर मुस्तफा का तज़किरा गवारा नहीं करता था। आज बेटे की मोहब्बत ने बाप को भी मजबूर कर दिया। बाप ने कहा बेटा हम तुझे वहां नहीं ले जाएंगे, बल्कि मैं दरे मुस्तफा में जाऊंगा उसे दावत देने के लिए। अलगरज बहुत बड़ा एक वाकया है। अब जो मुस्तफा का दुश्मन था, पूरे अरब में मशहूर था कि यार ये हुजूर से बड़ी नफरतें करता है। आज सहाबा देख रहे हैं, वो जो मुस्तफा का चेहरा देखना भी गवारा न करता था, वो जिस मुस्तफा का नाम सुनना भी गवारा नहीं करता था, वो जो मुस्तफा का तज़किरा छेड़ना भी गवारा नहीं करता था, आज मुस्तफा की गली में नंगे पांव आ रहा है। आज मुस्तफा की गली में नंगे पांव आ रहा है, आंख में आंसू लिए आ रहा है। किसी सहाबी ने हुजूर को खबर दे दिया, कहा हुजूर फला दुश्मन आ रहा है। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा मैं रहमतल लिल आलमीन हूँ, मेरे दामन में हर एक को आने की इजाजत है। हुजूर ने आने की इजाजत दे दी। बाप था ना, दुश्मनी थी, सब भूल गया। अर्ज करते हैं हुजूर मेरा बेटा आपका दीवाना हो गया है, आज आखिरी सांसें गिन रहा है। मेरी ख्वाहिश है और उसकी भी तमन्ना है कि आप वहां चले आई है। हुजूर तन्हा न गए, सहाबा से कहा ओ मेरे दीवानों उठो, मेरा आशिक मुझे बुला रहा है। लोगों आवाज
आवाज तो दो जरा मुस्तफा को, पुकारो तो सही, दिल एक बार बाजार मुस्तफाई में सौदा तो कर डालो, अपने दिल को लाकर मुस्तफा की कदमों में तो डाल दो, मदीने से मुस्तफा तुम्हारे घरों में भी आ जाएंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया कहते हैं, अर्ज करते हैं कि हुजूर तशरीफ ले चलिए। हुजूर ने कहा दीवानो उठो, दीवानो उठो। एक सहाबी नहीं, दो सहाबी नहीं, तीन सहाबी नहीं, बल्कि हुजूर के दरबार में बैठे हुए 300 सहाबी एक साथ खड़े हो गए। अब मदीने की गलियों में शोर मच गया। देखो आज हुजूर जा रहे हैं और उनके पीछे सारे सहाबा जा रहे हैं हुजूर को देखने के लिए। बच्चे छतों में निकल गई, औरतें छतों में निकल गई और तमाम बुजुर्ग भी अपनी अपनी खिड़कियों से खोल के मुस्तफा का दीदार कर रहे थे। अल्लाहू अकबर, क्या मंजर आ गया मदीने में। फिर एक बार मदीने की गलियां सजने लग गई। बच्चे हो या बच्चियां हो, औरतें हो या बूढ़िया हो, जवान हो या बुजुर्ग हो, सारे गलियों में निकल गए। देख रहे हैं क्या बात है, आज मुस्तफा कहाँ जा रहे हैं। तमाम हुजूर के पीछे हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी बारात कहीं तशरीफ ले जा रही है। अल्लाहु अकबर। आखिर यहूदी के घर पे करीब पूछे, इधर इजराइल भी हाजिर हो गए रूह कब्ज करने के लिए। 3 कदम दूरी पर रूह कब्ज करके इजराइल जा रहे थे। ऊपर से देखा इजराइल ने उसी घर की तरफ मोहम्मद आ रहे हैं। इजराइल ठहर गए। रब का पैगाम आया, इजराइल जा जान वापसी डाल दे, इसलिए कि मेरा हबीब आ गया है, मेरा हबीब आ गया है। मुर्दू को जो जिंदा कर दे उसे मोहम्मद कहते हैं, जो मिटे हुए को फिर से जिंदगी दे दे उसे मोहम्मद कहते हैं। हुजूर गए। जाने के बाद बच्चे के सामने खड़े हो गए। बच्चे ने हुजूर को देखकर आंख से आंसू के बड़े बड़े जो है ना ओले की तरह आंख से आंसू निकले। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 7 साल बच्चे पर जब नजर मारी, रावी कहते हैं आका के भी आंख में आंसू आ गए। हुजूर ने उम्मती को देख लिया, उम्मती ने हुजूर को देख लिया। हुजूर ने सर पे हाथ रख दिया। ऐसा लगा जैसे बच्चे ने सोच लिया आज दोनों जहां लाके मेरे कदमों में रख दिया, आज दोनों जहां लाके मेरे कदमों में रख दिया। हाथ हुजूर ने रख दिया। अब हुजूर फरमाने लगे, बोल मेरा कलिमा पढ़ेगा। वो कहने लगा कलिमा पढ़ने से क्या मिलेगा? कहा अगर तू कलिमा पढ़ेगा तुझे जन्नत मिल जाएगी। तुझे 7 साल बच्चा था। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं कलिमा आपका पढ़ूंगा। मेरे पास कोई नमाज नहीं है, कोई रोजा नहीं है, कोई तिलावत भी नहीं है। आका जब मैं कलिमा पढ़ूंगा तो मुझे आपके शरीयत के मुताबिक दफनाए जाएंगे, तो मुझे अंधेरे से बड़ा डर लगता है। आप पहले वादा कीजिए ना, कब्र से लेके जन्नत तक आप मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे, आप मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। वो दीवानो तमन्ना है, वो दीवानो तमन्ना है। जरा बोलो तो सही, हाथ उठा के किस किस को तमन्ना है कि हुजूर हाथ थाम ले। अल्लाहु अकबर। और एक बार हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाकर जरा बोलिए तो किसको तमन्ना है? सबको है तमन्ना, तो मिलकर नाराए रिसालत, रिसालत, रिसालत करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा हाथ कब्र से लेकर जन्नत तक थाम लेंगे तो मैं आपका कलिमा पढ़ लूंगा। हुजूर ने कहा दीवाने कलिमा पढ़ना तेरा काम है, कब्र को रोशन करना मोहम्मद का काम है। अल्लाहु अकबर। कलिमा पढ़ना तुम्हारा काम है। मेरे द्रास के लोगों, कलिमे का विर्द करना तुम्हारा काम है, कब्र को रोशन करना मुस्तफा का काम है। कब्र को रोशन करना मकसद ये है कि बच्चा 7 साल का था लेकिन लुट गया दिल से दरे मुस्तफा पर, लुट गया दिल से। मैं बारहा कहता हूँ
मैं बारहा कहता हूँ, साहिब मेरा रब तुम्हारे ये जो है ना 10-10 हजार के कपड़ों को नहीं देखता है। मेरा रब जो है ना तुम्हारे हाथों में ये महंगे मोबाइल नहीं देखता है। मेरा रब तुम्हारे बड़ी बड़ी मर्सिडियां नहीं देखता है। मेरा रब तुम्हारे घरों में जो है ना अलग अलग कमरे, उसमें अलग अलग किस्म की पैलिंग ये नहीं देखता है। मेरा रब जो है ना तुम्हारे सरों में कितने रुपए की टोपी है ये नहीं देखता है। मेरा रब ये भी नहीं देखता है तू काला है, तू गोरा है, तू लाल है, तू खूबसूरत है। मेरा रब ये भी नहीं देखता है तू अंधा है, तुझे आंख दिया है। मेरा रब ये भी नहीं देखता है तू लंगड़ा है, तू क्या है। रब देखता है तो बस दिल देखता है। तो जिधर दिल सौदा हो जाए मेरा रब दो जहां उसके नाम कर देता है। और शबे बरात में आने वालों, इस रात मुकद्दर पे नाज होना चाहिए। हर रात मांग के कहते हो ना खालिक दे दे, आज तो खालिक खुद कह रहा है मांग लो दे दूंगा, मांग लो दे दूंगा, वो मांग लो दे दूंगा। खालिक कह रहा है मांग लो दे दूंगा। वो क्या चाहिए? रोजी, रब कह रहा है रोजी ले लो। क्या चाहिए? औलाद, रब कह रहा है औलाद ले लो। रब कह रहा है क्या चाहिए? इल्म, रब कह रहा है इल्म ले लो। मगर मांगो तो सही, जुबान से नहीं। दिल को जरा रब के दरबार में लाके तो देखो ना, दिल झुका कर तो देखो ना। और दरबार तक आने के लिए कदम जरूरत पड़ते हैं, लेकिन दरबार में झुकने के लिए दिल की जरूरत पड़ती है। दिल का सौदा होना चाहिए। दिल जिधर झुक जाता है ना, फिर सब जो काम बन जाता है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस जो मौलाना शबीर साहब ने भी और मौलाना रहमान साहब ने भी बयान किया कि इस रात बनो कलब की जो भेड़ होते हैं या बकरी होते हैं, उनके बालों के बराबर अल्लाह उम्मत की बख्शिश फरमाता है। एक भेड़ में कितने बाल होते होंगे? कभी अंदाजा लगाया? एक भेड़ में कितने बाल होते होंगे? कोई हिसाब लगा सकता है? कोई मशीन बनी है आज तक? और मेरा रब कह रहा है तुम एक भेड़, नाना लाखों भेड़े हुआ करती थी। कहा उनके बाल जितने लाख भेड़ के बाल जमा करोगे, इससे भी ज्यादा लोगों को आज मेरा रब बख्श देता है। अल्लाह उन बख्शिश वालों में हमारा नाम हो जाए, हमारा नाम हो जाए। यहाँ कई तड़पे हुए लोग आए होंगे, यहाँ दर्द लिए भी लोग आए हैं, यहाँ तमन्नाएं लिए भी लोग आए हैं, यहाँ आरज़ू भी लिए लोग आए हैं। कोई परेशान होगा, कोई जो है ना परेशान हाल होगा, कोई रोजगारी के लिए तरस रहा होगा, कोई जो है ना नौकरी के लिए तरस रहा होगा, कोई औलाद के लिए तरस रहा होगा। मालिक आज सब पे नजरे करम कर दे, आज सब पे नजरे करम कर दे, आज सब पे नजरे करम कर दे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रात भर जागना भी आसान है, लेकिन फजर पढ़ना ये मुश्किल है। ये क्या है? अभी जब जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा सब घर चले जाएंगे, ऊपर ओढ़ कर आसान करके सो जाएंगे। फजर कदा हो गई तो फिर शब मनाने का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा। याद रखिए, साफ और सीधी बात करता हूँ, बुरा लगे अच्छी लगे मुझे इससे कोई फिक्र नहीं होती है, क्योंकि मैं शरीयत बयान कर रहा हूँ। बस अल्लाह राजी हो जाए, मुस्तफा राजी हो जाए, मेरे लिए इतना काफी है। नमाज जो है ना, ये मोमिन की पहचान है, ये मोमिन की पहचान है। नमाज मोमिन और मुस्लिम के दरमियान फर्क करने वाली चीज है। और जिस घर में नमाज ना हो, फिर उस घर में अल्लाह की रहमत और जिस मोमिन पे नमाज का शौक नहीं हो, वो इसका दावा ही ना करे कि मैं आशिके रसूल हूं, वो झूठा है। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया है, जो नमाज पढ़ता है वो मोहम्मद को ठंडक पहुंचाता है, और जो नमाज न पढ़ता है वो मोहम्मद को तकलीफ देता है। तो तकलीफ देने वाला भी कोई आशिक होता है? वैसे आशिक नहीं, ये झूठे हैं, ये ड्रामे हैं। हम ऐसू को आशिक मानते नहीं है, हम आशिक उसको मानते हैं जो मुस्तफा की शरीयत का पाबंद हो, जिसने शरीयत को इज्जत दिया हो, जिसने मुस्तफा के तरीके को एहतराम किया हो, हम उसको अपने सर का ताज मान लेते हैं। जो दिन भर नमाज न पढ़े और इश्क का दावा करे, हम कहते हैं ये झूठा है अपने दावे में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैंने एक
आयत करीमा अपने खुतबे में पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। बोलो मिलकर क्या पढ़ी थी? मिलकर जरा और एक बार, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। इसका मतलब सादा सा तर्जुमा, ए ईमान वालों, होना सारे ईमान वालों। टेबल के नीचे से सौदा करने वाला भी कहता है मैं मोमिन हो गया हूँ, माशा अल्लाह। 10 लाख का घोटाला करने वाला भी कह रहा है मैं मोमिन हो गया हूँ, माशा अल्लाह। और क्या क्या आए गिनाओं में, झूठ बोलने वाला है, बाजार घूम रहा है, बोल रहा है मैं इधर हूँ, मगर है बाजार में, फिर भी कह रहा है आए मैं मोमिन। ऐसे लोगों की अगर ईमान की डिफिनेशन कर दी जाए तो बेचारे औलिया किराम के बारे में क्या फरमाएंगे हम। इसलिए अजीजान मिल्लत इस्लामिया, यहाँ मोमिन से बात हो रही है। एक होता है या अय्युहन नास, कुरान में जिक्र है, एक जिक्र है या अय्युहल मुस्लिमून, एक जिक्र है या अय्युहल मोमिनून। इन दो को निकालिए, या अय्युहन नास और या अय्युहल मुस्लिमून। रब कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, क्या कह रहा है? ए अल्लाह को मानने वाले, ए अल्लाह को मिलकर ए अल्लाह को मानने वाले। खालिक कौन? अल्लाह। खालिक कौन? अल्लाह। मालिक कौन? अल्लाह। राज़िक कौन? अल्लाह। रहमान कौन? अल्लाह। रहीम कौन? अल्लाह। मानते हो ना? हर मुसीबत से कौन बचाता? अल्लाह। बीमारियों को कौन शिफा देता? अल्लाह। बे औलादों को औलाद कौन देता? अल्लाह। बेरोजगारों को रोजगारी कौन देता? अल्लाह। नेकियों की तौफीक कौन देता? अल्लाह। सजदों की तौफीक कौन देगा? इज्जतें कौन अता करता? बुलंदियां कौन अता करता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए अल्लाह को मानने वाले। दो बातें यहां से कहूंगा। कहा वो बंदा जिसका ये यकीन होना कि अल्लाह हर हाल में देखता है, वो कभी गुनाह नहीं कर सकता, वो कभी गुनाह नहीं कर सकता। हाँ साहेब, छुप के आप गुनाह कर देते हो, मगर मेरा रब तो उधर भी देख लेता है। और लोगों से छुपने वालों, रब से नहीं छुप रहे हो। वो हया तो रब से करनी थी, तू लोगों से कर रहा है। यार तूने सौदा लोगों के हाथों में कर दिया है, रब के दरबार में तूने अपना सौदा किया ही नहीं है। और फिर हाजतें कहां से पूरी होंगी? या अय्युहल्लज़ीना, मिलकर या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा। तूबू, आओ तौबा करो, आओ और माफी मांग लो, और रब को राजी कर लो, और रब को मना लो, और रब से कह दो ना हम मुजरिम है, रब से कह दो ना। हाँ खालिक, इकरार कर लो अपनी खताओं का, खालिक से कह डालो हाँ हम खताकार हैं, और तौबा कर लो, मान लो अपनी खताएं, कह दो ना हाँ हमने सारी जिंदगी बगावत की है। तूबू इलल्लाह, तूबू इलल्लाह। आओ अपने जुर्मों को लेकर रब की बारगाह में। आज की रात ही तो है ना, सारे जुर्म लेकर आओ, तुम दिल से इकरार कर जाओ। रब कहता है मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। ये रात है, ये रात है, वक्त भी ज्यादा हो गया है, अभी सलात तस्बीह भी पढ़नी है, मैं थका हुआ भी हूँ। आखिरी बात साहिब, आखिरी हदीस सुनिए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, महशर में उस बंदे की भी बख्शिश हो जाएगी जिसकी आंख से एक आंसू का कतरा ही निकला, और एक बाल जो है ना वो गीला हो गया। क्या तो साहिब देखो ना, रब तो हर वक्त तुम पर रहमत की बरसात कर रहा है। एक बाल साहिब, एक बाल तुम्हारी आंख का अगर गीला हो गया हो, मेरा रब मैदान महशर में कहेगा सबके सामने, फिरिश्तों इस बंदे को जन्नत अता कर डालो। एक बाल आंख का आंसू करने पर तुम्हें जन्नत मिल सकती है। अगर तुम अपने तमाम गुनाहों से आज तौबा करके सच्चे और पक्के नमाजी बन जाओगे तो मुस्तफा तुम्हें अपनी जियारत करा देंगे। तो सौदा बड़ा आसान है साहिब, बस करके आपका काम है सौदा में माल देने के बाद फिर वापस लिया, फिर वापस लिया। और भाई मैंने आपसे मोबाइल खरीद लिया,
पैसा भी दे दिया, अब कोई दावा कर सकता है? तो एक बार तौबा करने के बाद फिर वापस गुनाहों में जाना, फिर वापस गुनाहों में जाना। और जो तौबा करता है फिर गुनाह करता है, हजरत अली फरमाते हैं वो अपने रब से मजाक कर लेता है, वो अपने रब से। वो जवानों, कुछ हुस्न को देखकर भटक जाने वालों, आओ ना मदीने वाले का हुस्न देख लो, आओ ना मदीने वाले का हुस्न देख लो। ओ चंद बड़ी बिल्डिंगों को देखकर नियतें बदलने वालों, आओ मदीने की गलियों में तुम्हें जन्नत नजर आ जाएगी। और किस किस चीज को देख रहे हो? कह रहे तुम दुनिया के जिस हुस्न को लाके मुस्तफा के कदमों में डालो, वो हुस्न भी मुस्तफा से भीख मांगता हुआ नजर आ जाए। कितना अच्छे दामन में तुम्हारा सौदा है, मगर आप अपने सौदे की कीमत नहीं जानते हो। अल्लाह ताला हमें समझने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और अभी हमारी इंशाअल्लाह सलातुल तस्बीह भी होगी ना। अभी हम तरतीब जो मैंने बताया था, पहले सलातुल तस्बीह पढ़ेंगे, मैं उसका तरीका बताऊंगा, फिर सफ़े खड़ी होंगी, जो ऊपर जाएंगे वो आरामी से जाइएगा, हर आदमी को यहाँ जगह नसीब नहीं होगी। सलातुल तस्बीह के बाद फिर इसी तरह सब यहाँ आ जाना है, फिर इंशाअल्लाह खत्म रसूलुल्लाह पढ़ेंगे, फिर कुछ देर जिक्र करेंगे। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल, अला तत्मइन्नुल, कहा दिलों से जंग जो छुड़ाता है वो अल्लाह का जिक्र होता है। वो जिक्र भी करेंगे, वो जिक्र भी करेंगे। फिर इंशाअल्लाह आखिर में दुआ होगी, दुआ के बाद मुसाफा होगा। पता नहीं किस नेक के साथ हमारा हाथ लग जाए और हमारा बेड़ा पार हो जाए। और हर एक के लिए दुआएं भी करेंगे। आप मिलकर मुझ गुनहगार के लिए भी दुआ कीजिएगा।